آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ میں ہوں اقصیٰ غلام دستگیر۔ خبروں کے سلسلے کو شروع کرنے سے پہلے آئیے ڈالتے ہیں ایک نظر آج کی خاص خبروں پر۔ ہیڈ لائنز کے اسپانسر ہیں گھرکل مسالے، روزمرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ، گھرکل مسالے۔ آزادی کا امرت مہوتسو کے تحت یوم آزادی کے موقع پر چلائی جا رہی ہے ہر گھر ترنگا نامی مہم۔ عوام میں بیداری پیدا کرنے تعلیمی اداروں کی جانب سے نکالی جا رہی ہیں جگہ جگہ ریلیاں۔ اسکولی طلبہ لے رہے ہیں بیداری مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ۔ سٹی سروے آفیسر کی مہربانی سے اس دفتر پر ایجنٹوں کا ہے قبضہ، ان سے ملے بغیر شہریان کے نہیں ہو پاتے کام۔ MIM کے عہدیداران کا الزام، ضلع کلکٹر سنیل چوہان سے توجہ کا مطالبہ۔ شیو سینا سے بے وفائی کرنے والے باغی MLA پردیپ جیسوال کو مات دینے پارٹی چیف نے چلی نئی چال۔ سابق MLC کشن چند تنوانی کو بنا دیا مہانگر پرمکھ۔ آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ MGM ہاسپٹل میں ایک 4 سالہ لڑکی کے برین ٹیومر کا کیا گیا کامیاب آپریشن۔ راجیو گاندھی جیون دائی اسکیم کے تحت مفت علاج و آپریشن اور بچی کی جان بچانے پر مریضہ کے رشتہ داروں نے ادا کیا ہاسپٹل انتظامیہ کا شکریہ۔ اب خبریں تفصیل سے۔ آزادی کا امرت مہوتسو اور مہم گھر گھر ترنگا کے تحت شہر میں اسکولوں کی ریلیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اس ضمن میں کراڑ پورہ کے فاطمہ اردو پرائمری، کٹکٹ گیٹ کے رضیہ فاطمہ ہائی اسکول اور دیگر کئی تعلیمی اداروں کے طلباء کی ریلیاں نکالی گئی۔ ناظرین، ملک کو آزاد ہوئے 75 سال مکمل ہو جانے پر امسال حکومت ہند نے ملک بھر آزادی کا امرت مہوتسو منانے کا اعلان کیا اور اس کے تحت مختلف سرگرمیاں اور پروگرام ملک بھر و ریاست بھر منائے جا رہے ہیں۔ اسی مہوتسو کے تحت حکومت نے ہر گھر ترنگا نامی مہم کا بھی اعلان کیا، تو اس مہم کو کامیاب بنانے اور عوام میں اس مہم کے تئیں بیداری پیدا کرنے کے لیے تعلیمی اداروں اور اسکول کالجوں نے بھی عملی طور پر شمولیت درج کروائی ہے۔ شہر بھر اور ضلع بھر کے اسکولوں کی ہزارہ ریلیاں روزانہ نکالی جا رہی ہیں۔ شہر کے کراڑ پورہ میں واقع فاطمہ اردو پرائمری کی جانب سے آج دوسری ریلی نکالی گئی، جس میں جماعت سوم تہفتم کے طلباء شامل ہوئے اور یہ ریلی کراڑ پورہ کی بستی و محلوں میں مختلف راستوں سے گزری اور گھر گھر ترنگا کا پیغام عام کیا۔ ریلی میں شامل طلباء مختلف قسم کے حب الوطنی کے نعرے لگا رہے تھے اور ہاتھوں میں بھارت ورش کے نقشے اور نعرے لکھی دفتیاں انہوں نے اٹھا رکھی تھیں۔ علاوہ ازیں کٹکٹ گیٹ علاقے میں جاری رضیہ فاطمہ اردو ہائی اسکول، دولت اردو پرائمری اسکول اور مسرواڑی کے یوسف اردو پرائمری اسکول کے طلباء نے بھی ریلیاں نکال کر گھر گھر ترنگا کے پیغام کو عام کرتے ہوئے عوامی بیداری پیدا کی۔ ان ریلیوں کے مواقع پر ہر اسکول کے اساتذہ و معلمات طلباء طالبات کی رہنمائی کے لیے ریلیوں کے ساتھ موجود تھے۔ اسی طرح شہر کے بائی جی پورہ کے سر سید اردو پرائمری اسکول کی جانب سے بھی 3 بیداری ریلیاں نکالی گئیں، جنہوں نے بائی جی پورہ کی گلیوں سے گزر کر گھر گھر ترنگا کا پیغام دیا۔ طلباء نے ان ریلیوں میں عوامی بیداری اور وطن سے محبت سے سرشار نعرے لگائے۔ یہ طلباء اپنے ہاتھوں میں مختلف بینرز اور سلوگنز لکھی تختیاں اٹھائے ہوئے تھے۔ ریلیوں کو کامیاب بنانے کے لیے صدر معلمہ قاضی نکھت اور اسکول کے جمیع اساتذہ و معلمات اور غیر تدریسی عملے نے محنت کی۔ آزادی کا امرت مہوتسو کے تحت ہر گھر ترنگا مہم چلائی جا رہی ہے۔ اسی مناسبت سے روٹری کلب آف اورنگ آباد کی جانب سے 15 اگست کو شہر میں 1,00,000 پودے لگائے جائیں گے۔ یہ اطلاع کلب کے ڈاکٹر سرتاج پٹھان نے دی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ آزادی کے 75 سال مکمل ہونے پر حکومت و انتظامیہ کی جانب سے منائے جا رہے ہر گھر ترنگا نامی مہم چلائی جا رہی ہے۔ اس خوشی کے موقع پر ماحولیاتی آلودگی کو کم کرنے کی غرض سے روٹری کلب آف اورنگ آباد کے سبھی ذمہ داران نے 15 اگست یوم آزادی کے موقع پر شہر میں 1,00,000 پودے لگانے کا عزم کیا ہے۔ یہ اطلاع روٹرین ڈاکٹر سرتاج پٹھان نے دی۔ انہوں نے شہریان سے اپیل کی کہ روٹری کلب آف اورنگ آباد کی اس شجرکاری مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ MIM کے سابق گروپ لیڈر ناصر صدیقی نے سٹی سروے آفس کی انچارج آفیسر بیدرکر میڈم پر سنگین الزام لگاتے ہوئے کہا کہ اس دفتر میں جب تک وزن نہیں رکھا جاتا تب تک فائل آگے نہیں بڑھائی جاتی، لہٰذا ضلع کلکٹر اس جانب توجہ دے اور شہریان کو ہونے والی پریشانیوں سے نجات دلائیں۔
देखिए आज हम जहाँ पे खड़े हैं ये कलेक्टर ऑफिस कहलाता है। ये यहाँ पर एक डिपार्टमेंट है सिटी सर्वे ऑफिस, और सिटी सर्वे ऑफिस की जो इंचार्ज है बिदरकर मैडम, जो सिटी सर्वे ऑफिसर है, वो बगैर रिश्वत के यहाँ पे कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पर लीगल काम लेकर जो लोग आ रहे हैं वो धक्के खा रहे हैं, और जो एजेंट है जो गलत काम करवा रहे हैं वो 2 पैसे ज़्यादा देकर यहाँ से काम करवा के जा रहे हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कलेक्टर साहब से, डिप्टी कलेक्टर साहब हो या जितने उच्च अधिकारी है, इसके आपसे माध्यम से मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि इनके ऊपर लगाम लगाओ। ये लोग जो है भ्रष्टाचार के अंदर डूब चुके हैं, और इनको भ्रष्टाचार के बगैर कोई काम करना आ नहीं रहा है। यहाँ पर नोटिसेस होके जो लीगल प्रोसेस होके 15-15 दिन 20-20 दिन हो जा रहे हैं, लेकिन ये देख रहे हैं कि दोनों पार्टी में से पैसा ज़्यादा किसके तरफ से आएगा। अगर जिसके तरफ से पैसा आया, चाहे वो गलत आदमी भी रहो, तो उसके काम को यहाँ पर अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन MIM ये चीज़ बर्दाश्त करेगी नहीं। मैंने अभी बताया हूँ, बिदरकर मैडम यहाँ से उठकर भाग गई है। अभी सीधा उठकर वो चले गए, वरना इनके काम 8-8 बजे तक चलते, और 8 बजे के बाद में जो है पैसे लेके काम किए जाते हैं। यहाँ पर ऐसे ही हमारा एक काम यहाँ पर बहुत दिनों से है, तो वो कहते हैं कि उसके 35,000 रुपये ला कर दो, तो उसके बगैर आपको PR कार्ड इशू होगा नहीं। तो ये रिश्वतखोरी के अंदर जो है ये ऐसे ऑफिसर है, इनके ऊपर लगाम कसनी चाहिए, और इनकी इंक्वायरी पूरा 1 महीने का या 2 महीने का जितना इन्होंने काला कारोबार किया हमको भी मालूम है, इसकी कलेक्टर साहब के पास इंक्वायरी लगाई जाएगी। और बिदरकर मैडम और उसके भी अतराफ में जो कुछ लोग हैं जो इसको कलेक्शन करके देते हैं किसी न किसी बहाने, 25 दे दो, 35 दे दो, 40 दे दो, आपका काम हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, तो ये चलने वाला नहीं है। अगर कलेक्टर साहब ने और डिप्टी कलेक्टर साहब और जितने अधिकारी है इन्होंने इनके ऊपर एक्शन नहीं लिया, तो MIM अपने स्टाइल में आंदोलन छेड़ेगी। अभी हमने सूरत के अंदर एंटी करप्शन के अंदर भी एक कंप्लेन दी है, वो ऑफिसर साहब आने के बाद में फ़ोन करेंगे, और यही बिदरकर मैडम की जाके हम एंटी करप्शन के अंदर और उनके आसपास के अंदर जितने ऑफिसर्स हैं जिन के अंडर में ये प्रोसेस चलता है उनके भी खिलाफ पैसे इतने लोगों के सामने पैसे मांगते हुए शर्म नहीं आ रही है। एंटी करप्शन के अंदर इनको कंप्लेन की जाएगी। शिवसेना के बागी रुकने असेंबली प्रदीप जायसवाल से पार्टी की मसनदे सदारत छीन ली गई, और उनकी जगह अब शहर सदर के ओहदे पर किशन चंद तनवानी को नामजद किया गया है। इस तरह शिवसेना ने एक बड़ा फैसला लेते हुए जायसवाल को एक धचका दिया है। जायसवाल को उन्हीं के हल्के इंतखाब में चैलेंज देने के मकसद से ये नई तरतीब व तश्कील अमल में लाई गई है, इस तरह के चर्चे हैं। यहाँ रहे कि रियासत की इंतहाई फ़ाल व मकबूल सियासी जमात शिवसेना में पिछले अरसे हुई शदीद बगावत के बाद शिवसेना के पार्टी सुप्रीमो उद्धव ठाकरे ने हर एक हल्के राय दही में बागियों के मद्दे मुकाबिल मजबूत क़यादत की तलाश शुरू कर दी है, और इसी के एक हिस्से के तौर पर औरंगाबाद मशरिक़ के हल्के से किशन चंद तनवानी को औरंगाबाद मगरिब, वस्त और फुलम्बरी हल्के असेंबली के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन प्रभागों के तहत आने वाले प्रभागों के लिए महानगर प्रमुख के ओहदे पर विराजमान कर दिया गया है, जो यकीनन प्रदीप जायसवाल के लिए एक धक्का कहा जा रहा है। खुलदाबाद पुलिस की जानिब से तालीम गाहों के तलबा को कानून से मुताल्लिक़ मालूमात अफ़ज़ा रहनुमाई की गई। कल यानी मुस्तक़बिल में मुल्क की बागडोर संभालने और मुख्तलिफ उमूर व मैदानों में कारकर्दगी दिखाने व सरगर्म अमल होने वाले बच्चों को कानून का पास व लिहाज हो और वो महज़्ज़ब व ज़िम्मेदार शहरी कहलाएं, इस मुताल्लिक़ रहनुमाई के लिए ताल्लुक़ा खुलदाबाद के बाज़ार सावंगी में ज्ञानगंज जूनियर कॉलेज और ज़िला परिषद स्कूल से खुलदाबाद पुलिस की जानिब से कानून से मुतल्लिक़ा जानकारियों की फराहमी के लिए रहनुमाई कैंप रखे गए। इस मौके पर माविन इंस्पेक्टर विजय कुमार वाघ और बाजार सावंगी पुलिस चौकी के बीट जमादार नवनाथ कोल्हे ने लड़कियों पर होने वाली ज़्यादतियों, नाइंसाफ़ी और इनसे छेड़खानी का जिक्र करते हुए इन जुराइम के तदारुकी क़वानीन से आगाही दी और तलबा व तालिबात को हिदायत व नसीहत की कि वह ऐसे मामलात के ख़िलाफ़ निडर होकर मजबूती के साथ इनका मुकाबला करें या अपने साथ हुई ज़्यादतियों व नाइंसाफ़ियों से पुलिस को आगाह करें। पुलिस पूरी जिम्मेदारी के साथ इनकी फौरी मदद करेगी। इस मौके पर जगन्नाथ बली, अंकुश सरोदे और संतोष पुंड मेहमानान खुसूसी थे। माविन इंस्पेक्टर वाघ ने भी तलबा व तालिबात को कानूनी मालूमात दी और तलबा व तालिबात को ज़्यादतियों और ओबाशों की छेड़छाड़ से बचने की तदाबीर भी बतलाईं, जिससे तलबा में बेखौफी और अज़्म व हिम्मत देखी गई। इस कैंप में कॉलेज के उस्ताद जोगेश झंझोर के सदर मुदर्रिस हरी भाव दहीफड़े, पुंजाजी नलावड़े, सहाफ़ती नुमाइंदे सैयद लाल, मनोज राणे, योगिता पारनेरे और दीगर अहम शख्सियात और स्कूल व कॉलेज के तदरीसी व गैर तदरीसी अमलों के अफराद मौजूद थे।
अपनी जिम्मेदारियों में कोताही बरतने वाले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर प्रमोद येवले को फौरी उनके ओहदे से बरतरफ किया जाए। ये मुतालिबा यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट काउंसिल के अराकीन ने यूनिवर्सिटी चांसलर से किया है। ये इत्तला आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई। उन्होंने सहाफ़ियों को बताया कि 7 मार्च 2022 को सीनेट मेंबर्स की एक मीटिंग जो कि चांसलर की सदारत में होती है, उनकी गैर मौजूदगी में महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी एक्ट 2016 की दफ़ा 11(1) के तहत वाइस चांसलर डॉक्टर प्रमोद येवले की सदारत में मुनक़िद की गई थी। यूनिवर्सिटी एक्ट की दफ़ा 28(2) के मुताबिक सीनेट ये सबसे आला अथॉरिटी है और इसी कानून की दफ़ा 4 के सब सेक्शन 15 के तहत इस मीटिंग के मिनट्स 30 दिन के अंदर सीनेट मेंबर्स को भिजवाना लाजमी है, मगर वाइस चांसलर ने एक्ट की दफ़ा 12(5) के तहत अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाईं, जिसकी वजह से ए ग्रेड में आने वाली डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी की बदनामी हुई है। इसी तरह सभी मेंबरान के एहसासात को ठेस भी पहुंची है, लिहाजा वाइस चांसलर को उनके ओहदे से फौरी बरतरफ किया जाए। इस तरह का एक मेमोरेंडम यूनिवर्सिटी के चांसलर को रवाना किया गया है। इस मेमोरेंडम पर आनंद निम्बालकर, डॉक्टर फूलचंद सलामपुरे और डॉक्टर राजेश करपे के दस्तखत सब्त हैं। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या आधीसभेची बैठक 7 मार्च रोजी झाली। कायद्यानुसार या बैठकीचं प्रोसिडिंग इतिवृत्त ज्याला म्हणतो किंवा कामकाजाचं जे काही कार्यवृत्तांत झालेलं आहे तो 30 दिवसाच्या आत विद्यापीठाने सर्व आधी सभा सदस्यांना पाठवणं गरजेचं होतं, परंतु दुर्दैवानं ते आज तागात पाठवण्यात आलेलं नाही। कायदा असंही म्हणतो की हे कुलगुरूचं कर्तव्य आहे की हे सगळे अधिनियम कलम ह्याचं पालन बरोबर होतंय का नाही। त्यामुळं या प्रकरणात कुलगुरूनं 5 महिने झाले आज तागायत अजूनही ह्याचे डॉक्युमेंट्स आधी सदस्यांना दिलेली नाहीत। त्यामुळं पूर्णपणे त्यांनी कर्तव्यात कसूर केलेली असल्यामुळं या कुलगुरूची कायद्याच्या तरतुदीमध्ये जे काय 12(5) मध्ये दिलेलं आहे की काय त्यांनी कसूर केलेला असल्यामुळं एखाद्यानं कर्तव्यात कसूर केला तर काय करायचं असतं, तर त्याची हकालपट्टीच करायची असते। तर ती मागणी मी आज राज्यपाल महोदय, मुख्यमंत्री महोदय व इतर सर्व अथॉरिटीजना पाठवत आहे। शहर के MGM मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में दिमाग के ट्यूमर के एक इंतहाई पेचीदा व बेमिसाल ऑपरेशन का कारनामा यहां के डॉक्टरों ने अंजाम दिया है। इस ऑपरेशन का एक ख़ास व अहम पहलू ये भी है कि जिस मरीज़ के ट्यूमर का ऑपरेशन किया गया वो महज 4 साल बच्ची थी। यहाँ के डॉक्टरों ने ये दुश्वार गुजार चैलेंज कबूल किया और इस मर्ज़ में मुब्तला 100 मरीज़ों में से इस एक 4 साल मरीज़ का कामयाबी के साथ ऑपरेशन कर दिया गया और इसी तरह अपने इंसानियत के मसीहा कहलाने वाले तक़द्दुस को दोबाला करते हुए इन डॉक्टरों ने इस बच्ची की जान बचा ली है। काबिल ज़िक्र है कि ये ऑपरेशन हुकूमत की स्कीम राजीव गांधी जीवनदायी योजना के तहत मुकम्मल तौर पर मुफ्त किया गया है। इस तरह की इत्तला MGM के डॉक्टर अंसारी ने दी है। मला आनंद वाटतो की आम्ही MGM मेडिकल कॉलेज न्यूरोसर्जरी डिपार्टमेंटमध्ये एक मेंदू ट्यूमरची शस्त्रक्रिया केली, जे खूप रेअर ब्रेन ट्यूमर होता। हे पेशंट 4 वर्षाची मुलगी होती जी आमच्याकडे एका गावातून आली। त्याला मेंदू डोकंदुखी होतं, डोळ्याला दिसायला कमी वाटत होतं आणि डोक्याचं जे साईज आहे ते वाढलं होतं। आम्ही तपास केल्यावर आम्हाला हे जाणवले की त्याला मेंदूमध्ये मेंदूच्या आतल्या भागात इंट्रावेंट्रिक्युलर ट्यूमर आम्ही म्हणतो असा एक ट्यूमर आहे आणि त्याची फिटनेस केल्यानंतर आम्ही त्याला शस्त्रक्रियासाठी घेतलं। त्याला एक 5 ते 6 तास हे ऑपरेशन चाललं। ऑपरेशन करताना आम्हाला हे जाणवलं की हे खूप ट्यूमर रूटीन ट्यूमरसारखा नाही आहे। आमच्याकडे आत्तापर्यंत 2000पेक्षा जास्त मागच्या 2011 पासून ब्रेन ट्यूमर ऑपरेशन झालेले आहे। तर या ट्यूमरला आम्ही तपाससाठी पाठवलं। हे ट्यूमर ऑपरेट करताना आम्ही दुर्बीण वापरली, मायक्रोस्कोप आणि एंडोस्कोप वापरून हे पूर्णपणे ट्यूमर काढायला आम्ही यशस्वी झालो। आमच्या टीममध्ये डॉक्टर नितीन कोटेचा, डॉक्टर सुशील शिंदे हे आमच्याबरोबर न्यूरोसर्जन होते आणि भूलतज्ञ म्हणून डॉक्टर सनिता कुलकर्णी मॅडम, डॉक्टर केलकर मॅडम, डॉक्टर भालेसाहेब हे होते आणि हे शस्त्रक्रिया पूर्णपणे आम्ही सक्सेसफुली पेशंटला ऑपरेट केलं। आता लहान बाळांमध्ये ऑपरेशन करताना 2-3 टेक्निकल गोष्टी असतात। एक तर हे ट्यूमर मेंदूच्या आत भागामध्ये इंट्रावेंट्रिक्युलर होता, तिथे मेंदूचे हात पायाचं जे कंट्रोल असतं, शुद्धीचं कंट्रोल असतो, टेम्परेचर कंट्रोल असतो, हे त्या गाठीच्या आजूबाजूला पूर्ण स्ट्रक्चर होते। ऑपरेट करताना याला प्रोटेक्ट करावा लागतो। दुसरं, लहान बाळांमध्ये ब्लीडिंग टॉलरेट होत नाही, तर हे ऑपरेशन करताना खूप
आम्हाला काळजी घ्यावं लागतं की ब्लिडिंग वगैरे कंट्रोल करून हळूहळू हे स्टेपने करावं लागतं. 6 तासाच्या ऑपरेशननंतर आम्ही ते पेशंट सक्सेसफुली आमच्या ICU टीमने मॅनेज केलं आणि ते पेशंटला आत्ता काहीही डेफिसिट नाही. ऑपरेशन करून हे गाठ आम्ही जेव्हा तपासासाठी पाठवली तेव्हा हे मिक्झॉइड ग्लायोन्युरल ट्यूमर म्हणून त्याची रिपोर्ट आली. हे आतापर्यंत पूर्ण वर्ल्डमध्ये 100 केसेस रिपोर्टेड आहे आणि आपल्या इंडियनमध्ये हे 3rd केस आहे अँड प्रोबॅबली द ओनली केस इन महाराष्ट्र. आणि आम्हाला बोलताना हे आनंद होतो की मागच्या 2011 पासून आत्तापर्यंत हे न्यूरोसर्जरी डिपार्टमेंट आपल्या MGMमध्ये इज द ओनली डिपार्टमेंट इन होल ऑफ मराठवाडा विच इज केटरिंग टू ऑल दिस पेशंट्स ऑफ न्यूरोसर्जरी वेदर दे आर पेडियाट्रिक और अडल्ट पेशंट्स. त्रास ती आधी चालत होती पण थोडं हळूहळू चालायची, जास्त म्हणजे हिंडत फिरत नव्हती. पण चालता चालता आता ह्या 2-3 महिन्यापूर्वी या काही की समजा ती उठाना आणि त्या उभं केली का हातपाय तिचे असे थरथर कापायचे. मग ती चालवण्याचं आणि नंतर मग असं दवाखाने हे तिकडे बघितले पण काय फरक वाटला नाही. मग डबल इकडं आलं, ऑपरेशन वगैरे हे केलं. हातपाय ते हे करत होते. खर्च नाही, आम्ही यवनामधून केलं सर. यवनामधून आपलं महात्मा ज्योतिबा फुले बद्दल म्हणजे अशी फ्रेश वाटते ना, मोकळी, ताण नाही. पहिल्यांदा मान अशी धरीत नव्हती, थोडीफार मान अशी व्हायची तिची. हे आता फ्रेश मान धरते समजा आणि व्यवस्थित हसते खेळते. चांगले धन्यवाद म्हणून शुभेच्छा चांगला. वहदत इस्लामी नामी तंजीम की जानिब से 10वीं और 12वीं इम्तिहान में नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले होनहार तलबा की हौसला अफजाई के लिए एक तहनीती इजलास 7 अगस्त को इम्पीरियल लॉन्स में मुनाक़िद किया जा रहा है. ये इत्तला आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई. प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर यासिर सिद्दीकी ने सहाफ़ियों को बताया कि वहदत इस्लामी औरंगाबाद यूनिट की जानिब से 10वीं और 12वीं इम्तिहान में नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले तलबा की हौसला अफजाई और इनकी रहनुमाई के लिए ये इजलास रखा जा रहा है, जिसमें इंजीनियरिंग में 16 गोल्ड मेडल हासिल करके पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन करने वाली कौम की होनहार बेटी बुशरा मतीन इस प्रोग्राम में मेहमान एजाज़ी के बतौर हाजिर रहेंगी, जो तालीमी मैदान किस तरह से सर किया जाता है इस ताल्लुक़ से तलबा की रहनुमाई करेंगी. वहदत इस्लामी ऑर्गेनाइजेशन औरंगाबाद यूनिट के इनवाइट किया है मुझे और मेरे फैमिली को 7 अगस्त को औरंगाबाद में फेलिसिटेशन प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे हैं. जो पूरे औरंगाबाद के टॉपर्स जो है 10th और 12th स्टैंडर्ड उनको फेलिसिटेट कर रहे हैं और मुझे एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर इनवाइट किया है ताकि मैं स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर सकूं, एनकरेज कर सकूं एजुकेशन के लिए एंड स्पेशली टू गर्ल्स स्टूडेंट्स. उन्हें मोटिवेट करना है कि आप अपने आगे की पढ़ाई पे फोकस करें और जो लड़कियां हैं वो ड्रॉप आउट ना करें और चाहे आपको कितने भी चैलेंजेस फेस करना पड़े अपने एजुकेशन को ना छोड़े और एजुकेशन और जो आपका गोल है उस पर फोकस करें और अपना अचीवमेंट हासिल करें. चाहे कोई भी चैलेंजेस आपके लाइफ में आए, अगर आपका रिश्ता अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ मजबूत हो तो दुनिया की कोई ताकत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी. तो बस ये यकीन रखें और अपने जो गोल्स है उसको अचीव करने के लिए कोशिश करें. मैं स्पेशली गर्ल्स स्टूडेंट्स को कहना चाहती हूँ. और जो पेरेंट्स है जो लड़कियों को कम समझते हैं लड़कों से और जिन्हें एजुकेशन नहीं दे रहे हैं, मैं वो पेरेंट्स से यही कहना चाहती हूँ कि जो लड़के आपको वो लड़कियां भी दे सकते हैं. अगर आपके घर बेटी आई है तो अल्लाह खुद कहते हैं कि उसकी हिफाजत मैं करूंगा. तो बिना कोई हिचकिचाहट आप अपने लड़कियों को पढ़ाएं. पेरेंट्स से मैं यही कहना चाहती हूँ. जिस मुकाम पे मैं आज आई हूँ ये मेरे पेरेंट्स के सपोर्ट से है, कंप्लीट सपोर्ट उनका रहा है. तो इसलिए मैं हर वालिदैन से यही कहना चाहती हूँ अपने लड़कियों को पढ़ाएं और उनके जो ख्वाब है उसे पूरा करें. जिला परिषद पंचायत समिति की प्रभाग रचना हस्बे साबिक ही रहेगी, ताहम गट और सर्कल की रिजर्वेशन कुरानदाजी नए सिरे से किए जाने के अहकाम इलेक्शन कमीशन ने दिए हैं. जिला परिषद जालना समेत रियासत की 25 जिला परिषदों और 284 पंचायत समितियों के अमूमी इंतखाबात के लिए गुज़िश्ता हफ्ते की गई कुरानदाजी मनसूख करने के अहकाम रियासत के चुनाव कमीशन ने दिए हैं. यहाँ रहे कि 2 रोज़ कबल रियासती हुकूमत ने ज़िला परिषद पंचायत समिति और नगर पालिकाओं के चुनाव हस्ब साबिक ही मुनक़िद करवाने का फ़ैसला लिया था. इसी तनाजुर में रियासत के इलेक्शन कमीशन ने गुज़िश्ता रोज़ जुमा के दिन मज़कूरा अहकाम सादिर किए हैं, जिसकी रूह से साबिक प्रभाग रचना कायम रहेगी. अलबत्ता रिजर्वेशन की क़रारअंदाज़ियाँ असर नौ करवाई जाने के अहकाम दिए गए हैं. 1 नवंबर 2005 के बाद मुलाजिमत में शामिल हुए रियासत महाराष्ट्र के सभी सरकारी नीम सरकारी अफसरान व मुलाजमीन के लिए
पुरानी पेंशन स्कीम लागू की जाए। ये मुतालिबा महाराष्ट्र स्टेट ओल्ड पेंशन एसोसिएशन के जिम्मेदारान ने रियासती वज़ीर आला एकनाथ शिंदे से किया। नाजरीन, हाल ही में रियासती वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ज़िला औरंगाबाद के दौरे पर आए हुए थे। इस मौके पर मुताल्लिक़ा तंजीम के एक वफ़द ने इनसे मुलाकात की और इन्हें अपने मसाइल से वाकिफ़ करवाते हुए मुतालबा किया कि 1 नवंबर 2005 के बाद मुलाजमत में शामिल हुए सभी सरकारी व नीम सरकारी मुलाजमीन को पुरानी पेंशन स्कीम बंद कर दी गई है। गुज़िश्ता 16 सालों में रिटायर हुए इन मुलाजमीन के अलावा इस दुनिया से रुखसत हो चुके मुलाजमीन के वर्सा को किन परेशानियों का सामना है, इससे इन्हें वाकिफ़ करवाते हुए एक मेमोरेंडम के ज़रिए इनसे मुतालबा किया कि इन लोगों को भी पुरानी पेंशन स्कीम लागू की जाए। इन लोगों ने बताया कि DCPS या पार्शल पेंशन दिए जाने के सबब इन लोगों में बेचैनी पाई जा रही है। इससे कबल इस मामले पर हुकूमत से कई मरतबा नुमाइंदगी भी की गई, मगर अब तक इनका मसला हल नहीं हुआ। साबिक रियासती वज़ीर संदीपान भूमरे पाटिल, अरकान असम्बली संजय शीरसाट और प्रदीप जायसवाल ने भी इन मुलाजमीन की वकालत की। इस वफ्द में भीमराव मुंडे, दीपिका एरंडे, गोविंद उगले, विजय लिम्बोरे, धनंजय परदेसी, प्रदीप मोरे और दीगर शामिल थे। गंगापुर से औरंगाबाद की सिमत आ रही ST बस का दौरान सफ़र टायर निकल गया। बस तेज़ रफ्तार न थी, जिसके सबब किसी मुसाफिर को ईज़ा नहीं पहुंची और एक बड़ा हादसा टल गया। नाजरीन, गुज़िश्ता रोज़ अपने इसी खबरनामे में हमने ST कॉरपोरेशन की ख़राब हाली और बदनज़मियों की खबर दी थी और आज ST की ख़राब हाली की ज़िंदा मिसाल सामने आ गई। गंगापुर से औरंगाबाद की जानिब आ रही ST बस, जिसमें 25 से 30 मुसाफिर सवार थे, और ये बस गंगापुर से निकलकर लासूर, गावली शिवरा, गाजगांव के रास्ते औरंगाबाद की जानिब रवां। इसका रास्ता भी खराब हाली के सबब कठिन था, इसलिए ड्राइवर बड़ी मुस्तादी और मुतवाज़िन रफ्तार से बस को चला रहा था कि अचानक बस का पिछला टायर रॉड टूट जाने की सबब बस से अलग होकर गिर पड़ा। बस चूँकि तेज़ रफ्तार न थी, इसलिए कोई ज़ख्मी या हलाक नहीं हुआ और ना ही कोई हादसा रोनुमा हुआ। इस तरह के कयास ऐनी शाहिदीन और मुसाफिरों ने जाहिर किए हैं। ST इंतज़ामिया के लिए लाजिम है कि वो वक्त रहते अपनी गाड़ियों की हालत सुधार लें ताकि मुस्तकबिल में किसी बड़े हादसे से बचा जा सके। इस तरह का मशवरा भी अवाम व मुसाफिरों की जानिब से ST के अरबाब मजाज को दिया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ बिड़किन औरंगाबाद रोड पर कार व मोटरसाइकिल के दरमियान हुए हादसे में मोटरसाइकिल सवार शदीद जख्मी हो गया। ये हादसा बिड़किन औरंगाबाद के रोड पर चीतेगांव के रमानगर के करीब पेश आया। पैठन की सिम जा रही कार और मुखालिफ सिम से आई मोटरसाइकिल मुतसादिम हो गए। हादसे में चीतेगांव का साकिन 14 साला नौजवान राहुल दलवी शदीद तौर पर जख्मी हो गया, जबकि इसकी मोटरसाइकिल भी तबाह हो गई। दलवी के सर पर चोट आने के सबब उसकी हालत की संगीनी के पेश नज़र उसे औरंगाबाद के एक खानगी अस्पताल में शरीक करवाया गया। हादसे के बाद जायवक़ू पर मुतालिका पुलिस थाना के माविन इंस्पेक्टर संतोष मानी की हिदायत पर पुलिस एहलकार चौहान व दीगर मुलाजमीन ने ज़रूरी कार्रवाई की और ज़ख्मी मोटरसाइकिल सवार को एक खानगी गाड़ी के ज़रिए अस्पताल भिजवाया। इसी तरह हादसे की शिकार कार व मोटरसाइकिल अपनी तहवील में ले ली। बिड़किन पुलिस थाना में मामला दर्ज कर लिया गया। पुलिस मजीद जांच कर रही है। खबरों के सिलसिले को ख़त्म करने से पहले आइए फिर डालते हैं एक नज़र आज की खास खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत यौम आज़ादी के मौके पर चलाई जा रही है हर घर तिरंगा नामी मुहिम। अवाम में बेदारी पैदा करने तालीमी इदारों की जानिब से निकाली जा रही हैं जगह जगह रैलियां। स्कूली तलबा ले रहे हैं बेदारी मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा। सिटी सर्वे ऑफिसर की मेहरबानी से इस दफ्तर पर एजेंटों का है कब्जा। उनसे मिले बगैर शहरियान के नहीं हो पाते काम। MIM के ओहदेदारान का इल्जाम। जिला कलेक्टर सुनील चौहान से तवज्जो का मुतालिबा। शिवसेना से बेवफाई करने वाले बागी MLA प्रदीप जायसवाल को मात देने पार्टी चीफ ने चली नई चाल। साबिक MLC किशन चंद तनवानी को बना दिया महानगर प्रमुख। आगे आगे देखिए होता है क्या।
MGM हॉस्पिटल में एक 4 साला लड़की के ब्रेन ट्यूमर का किया गया कामयाब ऑपरेशन। राजीव गांधी जीवनदायी स्कीम के तहत मुफ्त इलाज व ऑपरेशन और बच्ची की जान बचाने पर मरीजा के रिश्तेदारों ने अदा किया हॉस्पिटल इंतजामिया का शुक्रिया। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं अक्सा गुलाम दस्तगीर आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।